Assalamu alaikum. 16 students are present right now. I... Assalamu alaikum, students. BSN, are you there? And please tell if you're able to hear me, if you're able to listen me, so that we may proceed forward towards our lecture. Okay, I think very few students are present. I think actually there were. I was also late. There was some connection error. There was some, I think, internet problem, and I was connecting from since 9 a.m. But now it is connected. And have you revised your yesterday lecture, which was about the hormones? It was quite easier, I think, as compared to other biochemistry lectures and topics. Okay, Lubna, thank you. So, today we will study enteral and parenteral nutritional support. I have shared you the slides and I have asked you to take out the printouts and the tables like this, which is currently on your screen. If you take the slide printout, means 6 slides on one page, 4 slides on one page, then this table will not be visible to you. So you have to take the printouts of the tables separately. So I'm saying you tables which are separately. These tables which we right now I am moving. So moving forward. So we have studied. I think we have studied these things: formula selection and the formula categories, and also the duration of tube feeding, enteral tube placement. Yes, we have done this, I think, and we have done the advantages, and also I think we have done with the have we done with the disadvantages. I think we have done with the disadvantages of rate and method of delivery. I think we have done with this also. And now I think we have to start from the consideration of the physical properties of the formula, internal formula. So far we have studied the enteral nutritional support, which is for the people who are unable to take the oral nutritional support. And in enteral nutritional support, which is by the tube feeding through the esophagus or through the stomach, there are certain formula categories which have been applied for the different patients who are suffering from the different diseases. And there are special considerations before giving the enteral nutritional support to any patient. There are special considerations we have studied, like applicable of site, like tolerance of the patient, like the formula selection. And we have also different formula categories for the different patients who are suffering from the different diseases. And there are certain also methods to deliver the formula.
like bolus, intermittent, gravity, continuous. These are the certain type of methods, rate and delivery of the methods to give the enteral category formulas. Then there are certain advantages and disadvantages of internal nutritional support, and there are certain complications of the nutritional support. So the important things are the advantages and disadvantages and the complications, and the formula categories also, they are very important. एंड डिफरेंस बिटवीन द एंटेरल एंड पेरेंटेरल, ओवरऑल जो डिफरेंस है एंटेरल में और पेरेंटेरल में वो भी हमको लाजमी करना है। ठीक है, अब जी हमने जो है एंटेरल फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज देखनी है। ठीक है, एक तो रेजिड्यू, उसमें फाइबर कंटेंट कितना है। ठीक है, इसके अलावा विस्कोसिटी, कितना गाढ़ा है आपका सोल्यूशन। ठीक है, उसमें साइज ऑफ ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी विड्थ के लिहाज से कि जो उसमें से पास हो सके। ठीक है, तो हमने रेजिड्यू, उसमें फाइबर कंटेंट कितना है हमने वो देखना है, उसमें विस्कस कितना है आपका सोल्यूशन हमने वो देखना है। सोल्यूशन में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है जिसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है, कि आपका जो फॉर्मूला है वो ज़रा बनेगा तो पानी में ही, लेकिन उसमें आपका सल्यूट कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सोर्स अगर है तो वो कितना है। इसके अलावा अगर प्रोटीन्स इनटैक्ट हैं, ठीक है, तो वो ऑस्मोलैरिटी को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे कि सोयाबीन से आइसोलेट किया हुआ है सोडियम और कैल्शियम, कैसीन यानी कि जो हमारी मिल्क प्रोटीन है, लैक्टोल्ब्यूमिन, और अगर तो इंटैक्ट है तो ऑस्मोलैरिटी इतना अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हाइड्रोलाइज्ड हमने यूज राइस पेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यानी कि ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो ज्यादा होगी फिर। तो ये हमने कंसंट्रेशंस देखनी है कि फॉर्मूला की कैटेगरी क्या है। इसके अलावा उन्होंने दिया हुआ है कि एडल्ट कितनी सोल्यूट कंसंट्रेशन पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स हैं तो आखिरकार उन्होंने किडनी से ही गुजरना है। प्योरिफिकेशन और अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन सारी तो किडनी नहीं करनी है। तो नॉर्मल जो एडल्ट्स की जो टॉलरेंस है वो है 1200 से 1400 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, कि 1 लीटर सोल्यूशन में अगर 1200 सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हम मिली ऑस्मोलैरिटी यूनिट है उसके। ठीक है, जैसे ग्राम किलोग्राम यूनिट है ना, ऐसे मिली ऑस्मोलैरिटी इज द यूनिट। तो हम 1200 से 1400 तक जो है ना वो सोल्यूट 1 लीटर में पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर जो रीनल पेशेंट्स होंगे ना तो जाहिर है उनको इफेक्ट होगा, प्रोटीन ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मली देखो ये जो हमारा सोल्यूट कंसंट्रेशन प्रोटीन्स कह रहे हैं कि ये हो गया प्रोटीन्स। तो आपके जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रिकमेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी हम बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, तो टॉलरेंस के लिहाज से हमने उनको ये जो कंसंट्रेशन है आपकी सल्यूट्स की उसको रखना है। देखो फॉर्मूलाज की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपने देना है ये स्पेशलाइज नर्सेज ही ये करती हैं, ऐसा नहीं कि हर बंदा आके जो है ना, वो होता तो यही है कि अकॉर्डिंग टू द डिजीज ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फॉर्मूलाज हैव बीन गिवन। अब जी लार्ज लोअर ऑस्मोलैरिटी, जितनी लार्ज ना उनकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना उतनी कम होगी। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। और जितनी हाइड्रोलाइज डिफाइन छोटी छोटी पार्टिकल्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लार्ज कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के मॉलिक्यूल्स या लार्ज प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, निम्रा जिनको भी आवाज का प्रॉब्लम है प्लीज लोग रिकनेक्ट करो। ऑलरेडी जो है ना आज मैंने भी काफी दफा सुबह से कनेक्ट किया है, देयर वाज आई थिंक सम इंटरनेट इशू। आर यू एबल टू हेयर मी निम्रा? आ रही है अब आवाज के नहीं? बिकॉज आई एम ट्राइंग कि तुम लोग को आवाज आए। एक्चुअली यू नो कि समटाइम्स ये होता है कि शायद आजकल डोर्स वगैरह भी तो क्लोज है ना, दरवाजे वगैरह सारे, तो फिर शायद इस वजह से
सिग्नल्स का ना मैं ओपन करके देखती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से तुम लोग को पता है कि वी हैव टू क्लोज द डोर्स ओपन। अभी आ रही है आवाज तुम लोगों को कि नहीं? अच्छा जी, हाई ना जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स हैं, जितना साइज छोटा होगा उनका उतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स वगैरह जो इनका साइज होगा उतनी इनकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो लार्ज पार्टिकल्स की कम है और छोटे पार्टिकल्स की जो है ना वो ज्यादा है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंस, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। हमने देखना है कि पेशेंट जो है आपका एंटेरल एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट टॉलरेट भी कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, क्योंकि पेशेंट देखो पहली बेड पे होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसको हम एंटेरल दे रहे हैं ना, यानी कि मुंह से खाना नहीं खा सकता। तो हमने देखना है कि ये जो है एंटेरल हम दे रहे हैं उसको ट्यूब फिटिंग, ये भी टॉलरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो उसमें हम कौन सी चीज देंगे, क्या किससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट और नॉट? तो उसमें सबसे पहले तो है कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिस्ट्रेस, तीसरा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको बता देंगे कि टॉलरेट कर, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना उसको शुरू हो गया, इसका मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहा। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फिटिंग, अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है इसका मतलब नहीं टॉलरेट कर पा रहा। उससे डायरिया हो जाता है या नोजिया या वॉमिटिंग, इसका भी यही मतलब है कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन या क्रैम्प्स या एस्पायरेशन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो इसका भी यही मतलब है कि पेशेंट जो है वो आपके फॉर्मूला है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। तो ये जो टॉलरेंस है इसके लिए हमने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी हम कर सकते हैं, उससे भी पता चल सकता है। लैब की कुछ फाइंडिंग्स हो सकती हैं, हाइड्रेशन, वेट चेंज, इसके अलावा एसोफेगियल रिफ्लेक्स, लैक्टोज, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जो हम प्रोटीन्स वगैरह देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। तो लैक्टोज टॉलरेट कर पा रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो फॉर्मूलाज होते हैं ना दे आर लैक्टोज फ्री, इसमें लैक्टोज नहीं होता, क्योंकि लैक्टोज से अक्सर पेट में तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम, लैक्टोज इंटॉलरेंस या इस तरह की डिस्कम्फर्ट वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना, ग्लूटेन भी ऐसी प्रोटीन है जो कि नॉर्मली पानी में डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। तो हमने वी हैव टू चेक लैक्टोज ग्लूटेन वगैरह टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इसके अलावा ग्लूकोज के हम टेस्ट वगैरह, ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज की कोई फ्लक्चुएशन वगैरह तो नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट टॉलरेट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। हाउ टू डिटरमिन द एनर्जी एंड प्रोटीन, देखो आप जितना उसको दोगे, जितना हम पेशेंट को एंटेरल फॉर्मूला देंगे, वो तो हमें पता है ना कि हमने उसको जो है ना वो 250 ml दिया एक ग्लास, या जैसे 200 cc दिया, ठीक है, हमने उसको, या हाफ लीटर हमने उसको दिया, तो क्वांटिटी तो हमें पता होती है हम उसको कितना दे रहे हैं। और ये जो फार्मूला स्पेशलाइज्ड फार्मूला फीडिंग्स होती है ना, इनके डब्बे में लिखा होता है कि इसके 1 ग्राम में इतनी प्रोटीन्स हैं, इसके 1 ग्राम में इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो वहां से फिर हम अपनी एनर्जी या कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि पेशेंट ड्रिंक्स 200 cc ऑफ 15.3% प्रोटीन दैट हैज 1 किलो कैलोरी पर ml, ठीक है। तो उसके 1 किलो कैलोरी में जो है ना वो 1 मिलीलीटर में 1 किलो कैलोरी है, और उसको पेशेंट को आपने दिया है 200 मिलीलीटर। 1 ml में 1 किलो कैलोरी है, तो 200 ml में हो जाएंगी 200 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि उसको आपने दिया है 15.3%, तो परसेंटेज उन्होंने 0.153% प्रोटीन को आपने 200 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3। अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस है वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों ने करनी भी ऐसा सच नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमने ये नहीं निकालना कि फॉर्मूला में कितनी आपने कैलोरीज उसको दी हैं, ठीक है। देखो जैसे कि पेरिस्टाल्सिस, लुबना बतूल, जैसे पेरिस्टाल्सिस होता है ना कि खा का वापस आ जाता है, इसी तरह एसोफेगस से अगर आपका
रिफ्लक्स हो जाए, अगर वापस आने लग जाए आपका फॉर्मूला, तो उसको हम कहते हैं एसोफेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, वही वॉमिटिंग वाली कंडीशन ही होती है, ठीक, तो टॉलरेट नहीं कर पा रहा पेशेंट। अच्छा, ये फॉर्मूला, ये जो है ना, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी एंड प्रोटीन, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये तुम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, ये हम कर लेते हैं कि जी, यूजुअली देखो उन्होंने लिखा है कि 1 ml में 1 किलो कैलोरी होती है और 2 किलो कैलोरी पर ml हाईएस्ट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो उसके 1 मिलीलीटर से मैक्सिमम आपको 2 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकेगा अगर हम 1 मिलीलीटर में ज्यादा कैलोरीज दे सकेंगे तो। अच्छा जी, प्रोटीन हमने अब, अच्छा पिछली दोनों स्लाइड्स जो है ना वो तुम लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। अब ये प्रोटीन वाली स्लाइड पे आ जाओ कि प्रोटीन हम कितनी पेशेंट को दे सकते हैं। तो नॉर्मली 14 से 60% जो है ना प्रोटीन हम दे सकते हैं, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाए 14 से 60%, ठीक है, ये नॉर्मल है। और 18 to 26% ऐसे लोगों को जिनको हाई प्रोटीन सोल्यूशन चाहिए, वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को ऐसा है कि स्लाइड जो हमने नहीं करनी ना, उसको ऑलरेडी कट करके डिलीट करके फिर नई फाइल सेंड करूंगी, ठीक है, आज इंशाल्लाह शाम तक ना नई फाइल सेंड करूंगी, कि ताकि तुम लोगों को याद रहे, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो तुम लोग जो है ना फिर डाउनलोड वगैरह अपने जो भी है प्रिंट आउट्स वगैरह उसके ले लेना। जो भी हमने स्लाइड इसमें से नहीं ना करनी, वो मैं ऑलरेडी कट करके आई विल सेंड यू द स्लाइड। ये हम करेंगे इंशाल्लाह कि पानी कितना देना पेशेंट को, ठीक है, इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के पेशेंट को वाटर हम कितना देंगे। तो हेल्दी एडल्ट है जो, उसको देखो लिखा हुआ है कि 25 मिलीलीटर पर किलोग्राम, उसके जितना उसका वजन है, ठीक है। उसका अगर वजन 1 किलो है, किसी का 1 किलो तो किसी का नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 kg वेट है, तो 35 ml पानी हमने उसको देना है, ठीक है। देखो 2 किलो वजन होगा तो 70 मिलीलीटर पानी, 3 किलो वजन होगा तो इसी तरह से जो है 105 मिलीलीटर पानी। इसी तरह से अगर उसका वजन जो है ना 50 किलो है किसी पेशेंट का, तो 35 को 50 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा उतना हम पेशेंट को पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलो के पेशेंट को 35 मिलीलीटर सिर्फ हमने पानी देना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज 100 किलो का पेशेंट है, तो इसका मतलब उसको हम 3500 पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्स को हम इतना पानी दे सकते हैं। इन्फेंट्स, बच्चों को हम जो है ना वो 150 मिलीलीटर पर किलोग्राम, यानी कि हेल्दी इन्फेंट्स जो हैं, सेहतमंद जो बच्चे हैं, उनको आप पानी ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मल ट्यूब फीडिंग में आपका 80 to 85% पानी होता है, क्योंकि पानी में ही आपका फॉर्मूला, जो भी मिल्क पाउडर है, जो भी पाउडर की फॉर्म में फॉर्मूला है, उसने डिजोल्व तो पानी में ही होना है ना। तो ट्यूब फीडिंग में 80 से 85% पानी होता है, ठीक है। और जो बूढ़े लोग हैं या जिनको रीनल या लिवर या कार्डिक फेलियर है, उनको आप 1 किलो में 25 मिलीलीटर पानी जो है उसका कम हो जाएगा, ठीक है, उनका वाटर टॉलरेंस। तो इस वजह से हम उनको अगर 1 किलो वजन है तो 25 ml पानी देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा कर सकते हैं अगर उनकी हिस्ट्री डिहाइड्रेशन की है, अदरवाइज 25 मिलीलीटर वाटर शुड बी गिवन, ठीक है जी। तो ये अब हमने ये वाली स्लाइड हम करेंगे इंशाल्लाह के वाटर हम कितना दे सकते हैं पेशेंट को, कि अगर हेल्दी इन्फेंट है तो 1 kg वेट है तो 35 ml वाटर, बच्चों में पानी ज्यादा कर देंगे, ठीक है, और बूढ़े लोगों में पानी की हम कंसंट्रेशन जो है वो कम कर देंगे, बिकॉज वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके बाद जी है सोर्सेज ऑफ द फ्लूइड, सोर्स क्या क्या है, ठीक है। लिक्विड्स हैं, जो आपका फूड जो आप दे रहे हो उसमें अगर पहले पानी है, देखो जैसे कुछ ऐसे फूड हैं जिनमें ऑलरेडी, ठीक है, जैसे कि आपके फ्रूट्स वगैरह हैं जी, इनमें पानी होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए आता है, water has been required with tube feeding, nurse will flush the tube with water about 3 times daily, include this amount in estimated need। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट को हम ट्यूब फिटिंग से खाना वगैरह दे रहे हैं, तो दिन में 3 दफा ट्यूब को साफ भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक दफा खाना दिया तो वो खाना पड़ा रहे, तो हम दोपहर में फिर उसी में ट्यूब में खाना डाले जा रहे हैं, लेकिन बार बार ट्यूब उतार के तो उसको धो नहीं ना सकते। ये तो पेशेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि बार बार हम ट्यूब को रिमूव करें फिर उसको वॉश करें। तो नर्स का ये काम है कि उसने
दिन में 3 दफ़ा जो है ना पानी से फ्लश करना है, ट्यूब को साफ करना है, ठीक है। तो जो पानी फ्लश करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो भी पानी पेशेंट के अंदर ही जा रहा है ना, अपने ट्यूब ही है, ट्यूब तो लगी हुई है। तो जब आप खाना खा लिया उसके बाद आप फ्लश करते हो, पानी से खाली पानी ट्यूब में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट के अंदर भिजवाते हो, तो वो पानी भी आपने जो है ना वो ऐड करना है। जो मैं डेली बता रही हूँ ना कि अडल्ट को इतना पानी चाहिए, उसमें वो पानी भी ऐड करना है, क्योंकि जो फ्लशिंग के लिए ट्यूब की यूज हो रहा है वो भी तो उसके पेट में ही जा रहा है ना पानी, ठीक है। तो फ्लश विद 200 cc 3 times इन डे, ये जो TID लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 times इन ए डे। नो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो मेथड्स मैंने पहले भी तुम लोगों को बताए थे, कंटिन्यूस मेथड है, ठीक है। इसकी स्लो रेट होता है, इसमें हम पेशेंट को 50 to 150 मिलीलीटर सिर्फ अपना जो भी आपका फॉर्मूला है, जो आपने वाटर में सोल्यूशन बनाया हुआ है, मिक्सचर बनाया हुआ है, जो पेशेंट को देना है, ठीक है, वो आप जो है ना स्लोली स्लोली पेशेंट को देते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट में हम अपनी अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं, 250 से 400 कर सकते हैं, ठीक है। और बोलस मेथड में जो है ना वो 300 से 400 ml आप दिन में काफ़ी दफ़ा दे सकते हो, लेकिन पुश इज़ नॉट डिजायर्ड, यानी कि ज़बरदस्ती वाली कहानी नहीं है। जितना पेशेंट इजीली टॉलरेट कर सकता है उतना ही आप पेशेंट को दोगे। फ्रेंच यूनिट्स, अच्छा ट्यूब का जो साइज़ है, देखो जैसे हम साइज़ को, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह से जो ट्यूब का डायामीटर है उसको हम फ्रेंच यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 फ्रेंच यूनिट इज इक्वल टू 33 मिलीमीटर डायामीटर, ठीक है। 33 मिलीमीटर, आपको पता है मिलीमीटर कोई बड़ी यूनिट नहीं है, ठीक है। तो एक ज़्यादा ज़्यादा आपकी जो ट्यूब है वो 0.3 सेंटीमीटर की होगी, 0.3 सेंटीमीटर की, 33 मिलीमीटर की, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज हैं जिनके लिए ट्यूब का साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। लेकिन नॉर्मली जो है जी ये 33 मिलीमीटर का डायमीटर होता है ट्यूब का, जिसमें से हम फॉर्मूला वगैरह को पास करते हैं। तो हमने ये MCQs वगैरह में कभी आ सकता है कि ट्यूब का साइज वगैरह कितना है, तो हमने याद रखना है कि फ्रेंच यूनिट्स में इसको मेजर करते हैं, और एक फ्रेंच यूनिट किसके बराबर है, 33 मिलीमीटर के बराबर है। मिलीमीटर को तुम लोग सेंटीमीटर वगैरह में भी चेंज कर सकते हो। अच्छा रोशना कंवर, लास्ट जो स्लाइड है ना वो उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेथड्स हमने पहले भी किए हैं कि डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर्मूला देने के, कंटिन्यूज, इंटरमिटेंट, बोलस, ये 3, ये और एक दो और मेथड्स हैं ग्रेविटी वाला, जैसे कि हमें अपना फॉर्मूला कैसे देना है। तो कंटिन्यूस मेथड में स्लो रेट, यानी कि आहिस्ता 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 से, जैसे ड्रिप में 30 होता है ना कि 1 मिनट में 10-20 कतरे गिरे, ठीक है, इस तरह से ही हमने अपना फॉर्मूला इस तरह से देना है कि 12 से 24 घंटे के दौरान जो है ना बस उसमें ये है कि हर घंटे में 50 से 150 मिलीलीटर तक जो है ना सिर्फ आपका सोल्यूशन पास हो, ठीक है। स्लोली स्लोली हमने देना है। इंटरमीडिएट ये कहता है कि आपका जो है ना 24 घंटे में 400 से 500 ml जो है ना एक दफ़ा पास हो, और वो दिन में आप 5 से 8 दफ़ा दे सकते हो, ठीक है। कि 24 घंटे में 250 आप 5 दफ़ा दे सकते हो, ठीक है, पेशेंट को। और बोलस मेथड में भी हम जो है ना दिन में काफ़ी दफ़ा जो है ना 300 से 400 ml तक दे सकते हैं पेशेंट को फॉर्मूलाज। तो ये हमारे सर्टन फॉर्मूलाज थे बेसिकली, कि कैटेगरीज को हमने डिलीवर कैसे करना है, देना कैसे है, उसका मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है। अब जी स्पेशलाइज कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक्स, ठीक है, लो रेजिड्यू जिसमें फाइबर कम होता है ताकि पेट ना पेशेंट का ख़राब हो, हाई प्रोटीन जिन लोगों को बर्न्स हैं या कोई सर्जरी हुई हुई है, जाहिर है उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उसके लिए स्पेशल होगा। वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन, जिनको रीनल पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, गुर्दों के, जिनको पानी नहीं ज़्यादा देना, ठीक है, या डायबिटिक शुगर के पेशेंट्स, पल्मोनरी COPD के पेशेंट, ठीक है, कोई हार्ट के पेशेंट, कोई लंग्स के पेशेंट, ठीक है, कोई अस्थमा के पेशेंट्स, तो उनके लिए जो है ना स्पेशलाइज फार्मूलाज होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक ही मुझे लगता है देते रहते हैं सबको, लेकिन वैसे जो है ना देर आर स्पेशलाइज फार्मूलाज विच हैव बीन अप्लाइड टू डिफरेंट पीपल। अब जी मॉनिटरिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है, तो क्योंकि ये इंटेरल और पेरेंटरल दोनों जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स हैं दे आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, दे रिक्वायर अ मैन पावर, दे रिक्वायर द लेबर, ठीक है, क्योंकि अगर पास के बंदा नहीं होगा
तो ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये हम सप्लाई नहीं कर सकते उनको आसानी से, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं खा रहा। तो इसके लिए जो है ना, हर टाइम एक नर्सिंग केयर जो है दैट शुड बी देयर अलॉन्ग विद द पेशेंट। घर में भी अगर है तो कोई जो है ना लुक आफ्टर करने के लिए होना लाजमी है, फिर ही हम ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। अदरवाइज ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है हम पेशेंट को नहीं सकते। ठीक है, तो जी ये आपके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गई है लंग्स की, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसको हम कह रहे हैं सीओपीडी। अच्छा जी, आप कैसे मॉनिटर कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि ठीक जा रहा है, आप इंटरनल सपोर्ट दे रहे हो, इंटरनल सपोर्ट दे रहे हो, उससे पेशेंट को कोई मसला नहीं हो रहा, पेशेंट के ब्लड टेस्ट भी सारे सही आ रहे हैं, तो ये हम कैसे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट का वेट जो हम दिन में 3 दफ़ा चेक कर रहे हैं, कम तो नहीं हो रहा पेशेंट का वेट। ठीक है, फिर अडीमा वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा पेट में पानी तो नहीं पड़ गया, फिर कोई डिहाइड्रेशन के साइंस तो नहीं है। ठीक है, कोई इसके अलावा नाइट्रोजन इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक कोई रेजिड्यूज वगैरह तो नहीं बन रहे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारे मेजर करेंगे, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे हम लेवल्स मेजर करेंगे। स्टूल को मेजर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्टूल में कोई ब्लड या कोई इस तरह वाली चीज़ें तो नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हम लाजमी मेजर करेंगे। ठीक है, इंटरनल सपोर्ट की मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है या ये जी ऐसी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ठीक है, ये डेली तो नहीं मेजर करनी है आपने, आगे जो है ना इनकी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वीक में 2 दफ़ा, एटलीस्ट वीक में 3 दफ़ा। ठीक है, क्योंकि डेली तो आप पेशेंट का इतना ब्लड नहीं ना लोगे कि वो बेचारा ब्लड ही देता रहे। तो इस वजह से जो है ना हमने ये मॉनिटरिंग जो है ना लाजमी, इस मॉनिटरिंग से हम पता चल जाएगा पेशेंट, इस मॉनिटरिंग से पता चलेगा। और जब ज़ाहिर पेशेंट वॉमिटिंग वगैरह नहीं कर रहा, डायरिया नहीं हो रहा, उसकी पता चल जाएगा कि आपका इंटरनल सपोर्ट जो दे रहे हो वो पेशेंट इजीली टॉलरेट कर पा रहा है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो पेशेंट की ज़ाहिर है फिजिकल अपीयरेंस, लैब टेस्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें बता देंगी कि इंटरनल सपोर्ट उसके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं फ़ायदेमंद हो रहा। ये लाजमी वाली कहानी है कि जी हमने उसको मेजर करना है, क्योंकि इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल और पेरेंटरल दोनों जो सपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हैं, वो एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें ब्लड टेस्ट आपको लाजमी करने हैं। ठीक है, और वो नर्सिंग केयर आपको लाजमी चाहिए, तो इस वजह से ये दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू ओरल। ओरल में तो कोई मसला जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। अच्छा जी, कौन कह रहा है जी, हीरा जफर कह रही है लास्ट लेक्चर का रिव्यू देखो। ये तो अब पता नहीं होता कि किसको सही आवाज़ जा रही है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, इसका लेकिन ये है कि अब जैसे तुम लोगों की ईद की वेकेशंस हैं तो उसमें चैप्टर्स करके आओ, क्योंकि जून में मुझे लगता है कुछ कॉलेजेस वगैरह जैसे कि एग्जामिनेशन की शीट वगैरह आ गई हुई है तुम लोग के सीनियर्स की। ठीक है, तो पेपर्स वगैरह कंडक्ट होने हैं जून से, तो उसमें फिर ये है कि हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर दें। तो जैसे इंस्टीट्यूशंस ओपन करेंगे तो जो चीज़ आ जाएंगी उसमें तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। 15 जुलाई की तो वैसे डेट आई हुई है। ठीक है, अगर उससे पहले ओपन हो जाते हैं तो उससे पहले हम फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ रह गई तो आखिरकार ओपन होना ही है इंशाल्लाह, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट मेक श्योर कि तुम लोग स्टडी करो खुद से। जब तक नहीं स्टडी करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई चीज़ है तो गूगल से सर्च कर सकते हो लिख के। वैसे भी तुम लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, तो स्टडी पर्पजेज़ के लिए भी तुम लोग ईजिली इंटरनेट जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो, इतना कोई बड़ी मसला नहीं है। फिर भी आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। अगर नहीं समझ आती तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि चीज़ें इंशाल्लाह हमने रिवाइज करनी है, इनका बहुत दफ़ा हमने टेस्ट लेना है, फिर कहीं जाके जो है ना ये समझ आएंगी तुम लोगों को। अच्छा जी, पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन एंड टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन। अब इंटरल न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है ना वो तो हो गया ख़त्म। दो तरह की थी ना न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एक मैंने तुम लोग को बताया था एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और एक मैंने बताया था पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, एंटेरल सपोर्ट तो हमने बात कर ली कि जो ट्यूब फीडिंग के थ्रू दे रहे हैं। जो पेरेंटरल सपोर्ट है ना, ये हम थ्रू ड्रिप, थ्रू लॉन्ग कैथेटर्स, ठीक है,
कि डायरेक्ट जो है ना आपकी वेसल्स में, आप जो है ना ब्लड में आना वगैरह आपका जो भी है वो इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, कि डायरेक्ट जो है आपके ब्लड में लोग जो है ना वो समझो इंजेक्ट ही हो रहा है खाना। इसको हम कह रहे हैं पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब जो पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ना, ये है दो तरह की। एक है पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एक है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। वन इज टोटल पेरेंटेरल टीपीएन, ठीक है, और एक है पीपीएन यानी कि पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। देर आर टू टाइप्स। दोनों में अब फर्क क्या है, कुछ फर्क इसमें लिखे हुए स्लाइड्स में, कुछ सुन लो कि जो है किलो कैलोरी रिक्वायर्ड यानी कि 10% डेक्सट्रोज अच्छा रिक्वायर्ड होता है पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन में। एक बात बता दूं कि जो टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन है ना, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है। उसके साथ तुम लोगों को कोई ट्यूब फीडिंग वगैरह देने की या कोई अलग से खाना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। और जो पीपीएन है ना, वो समझ लो कि हाफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, हाफ तुम लोगों को फिर साथ में जो है ट्यूब फीडिंग वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, उससे तुम लोग को खाना देना पड़ता है। जो टीपीएन है वो टोटल सपोर्ट है, उसके साथ किसी अलग से किसी फॉर्मूला किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीपीएन के साथ हो सकता है कि तुम लोग साथ में ट्यूब फीडिंग वगैरह भी कुछ हद तक देनी पड़े। फ्लूइड टॉलरेंस, ठीक है, ये टीपीएन में ज़्यादा होगा, पीपीएन में कम होगा। ऑस्मोलैरिटी जो है वो भी टीपीएन में हाई होगी क्योंकि वो टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट है। इसके अलावा ड्यूरेशन, टीपीएन हम ज़्यादा अरसे के लिए दे सकते हैं, जो पीपीएन है ना वो हम कम अरसे के लिए देंगे। ठीक है, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट इज गिवन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट द पीपीएन जो है पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट इज गिवन फॉर द इज अप्लाइड फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साल हर साल आप पेशेंट को पीपीएन पे रख लो। ठीक है, तो जो खुराक की नाली वगैरह वो तो तुम लोग 6 महीने इजीली जो है पेशेंट उस पर रह सकता है, साल भी रह सकता है। लेकिन टीपीएन और जो पीपीएन है ना, इस पे जो है ना वो ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। स्पेशली पीपीएन तो बहुत कम अरसे के लिए, 14 दिन से कम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट और जो टोटल पेरेंटेरल है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर 1 मंथ 2 मंथ। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ज़्यादा सेफ फिर आपकी इंटेरल सपोर्ट ही होगी। अच्छा जी, आप ये जो रूट्स हैं, किस रूट से आपने देनी है टीपीएन और किस रूट से आपने देना है पीपीएन। ठीक है, इसमें लॉन्ग नीडल लाइक कैथेटर्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट अपनी सुपीरियर वेना कैवा में जो है ना वो इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो है ना सुपीरियर वेना कैवा को भी शो किया हुआ है, सब क्लेविन वेन को भी शो किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सफेलिक वेन को भी शो किया हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये जो डायरेक्ट रूट यानी कि सुपेरियर वेना कैवा में जब हम इंजेक्ट करते हैं ना, तो ये है टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। और जब हम आर्म्स या लेग्स की किसी छोटी वेन्स के में इंजेक्ट करते हैं अपना कैथेटर, उसके थ्रू जब हम देते हैं ना डाइट, तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि टीपीएन जो है ना वो लॉन्गर पीरियड के लिए है, पीपीएन शॉर्टर पीरियड के लिए है। ठीक है, टीपीएन जो है ना वो उसमें फ्लूइड वगैरह आप लोग मतलब कि उसमें कंप्लीट एक वो डाइट प्रोवाइड करता है टीपीएन। लेकिन जो पीपीएन है ना उसमें साथ में अलग से किसी और डाइट की भी जरूरत पड़ सकती है, वो कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा जो साइड जो प्लेसमेंट है उसमें जो है ना टीपीएन जो है ना वो मेजर रूट सुपीरियर वेना कैवा से हम पास करते हैं, लॉन्ग कैथेटर्स को इंसर्ट करते हैं बॉडी में। और जो आपके जो है जो आपकी लिम्स की वेन्स हैं, लेग्स की और आर्म्स की, ठीक है, उनमें जब हम कैथेटर इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पीपीएन, पेरिफेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आई थिंक 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना वो आते हैं इंशाल्लाह, और आज हम इस चैप्टर को जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। अदीना, फ्लूइड टॉलरेंस मैं तुम्हें बता देती हूँ। फ्लूइड टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितना फ्लूइड टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने पहले भी बताया है कि जो रीनल किडनी के पेशेंट्स हैं वो ज़ाहिर है इतना फ्लूइड टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उसको हम कम देंगे। बच्चे ज़्यादा फ्लूइड टॉलरेट कर सकते हैं, बुरे लोग भी फ्लूइड टॉलरेट ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट आया है किस टाइप का तुम लोग के पास। चलो अभी 10 मिनट की ब्रेक के बाद जो है ना इंडिकेशन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और ये हम जी
Gee, welcome back, students. After a short 10 minutes break, that was just to give a rest to the just the throat. रमजान में थोड़ा ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, और सुबह सुबह और ऑलरेडी कल तो ऐसी थोड़ी सी जरा आँख रात थी, इबादत की रात थी, तो जो है ना वो समझो कि नींद शींद भी कोई नहीं पूरी हुई भी। अच्छा जी, क्योंकि आज जो है ईद से पहले वाला हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि हम इस पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट को इंशाल्लाह जल्दी से फिनिश करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है जी, वो हम तब देंगे, उसके लिए शर्त है, ऐसे नहीं हम देंगे। उसके लिए ये है कि जब जीआई ट्रैक्ट भी काम ना करता हो, यानी कि किसी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुंह तो वो हाथों से तो नहीं खा सकता मुंह, क्योंकि जॉ की सर्जरी हुई है, लेकिन उसका इंटेस्टाइन भी जो है ना वो भी डैमेज हो चुका है, स्टमक भी रप्चर हो चुका है, यानी कि उसका जीआई ट्रैक्ट इम्पेयर्ड है और कोई आपका सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम देंगे पैरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्योंकि वरना तो हम इंटेरल दे देना, हमारे पास है, अगर जीआई ट्रैक्ट काम करता हो तो फिर हम इंटेरल सपोर्ट दे दें। बट इफ जीआई ट्रैक्ट इज नॉट फंक्शनिंग तो हम इंटेरल सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो खाना जाएगा किधर, स्टमक में मेटाबोलाइज कैसे होगा। या मेटाबोलाइज की नहीं बात, लेकिन जाहिर है जो आप मुंह से चीज खाओगे वो जानी तो आपके स्टमक में है, ठीक है। तो हमने जो है जी पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट तब देनी है व्हेन द जीआई ट्रैक्ट इज नॉट फंक्शनल, और जो है एनपीओ ग्रेटर देन 5 days, यानी कि कुछ नहीं खाया हुआ 5 दिन से पेशेंट ने, जीआई फिस्टूला है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, शॉर्ट वाल्व का सिंड्रोम है, मैल न्यूट्रिशन है, और उसमें वेट लॉस भी हुआ है, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल नीड्स पेशेंट की पूरी नहीं हो रही, और पेशेंट खाने से भी एनोरेक्सिया है, खाने से भी इनकार कर रहा है। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें हम पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देंगे, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा, 5 दिन से ज्यादा हो गए, कुछ खाया नहीं, मेल न्यूट्रिशन है, वजन कम जा रहा है, ओरली इनटेक उसकी न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, पेशेंट खा भी नहीं सकता, ठीक है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ये सारी कंडीशंस वो हैं जिसमें हम पेशेंट को देंगे पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और ये मैंने बताया 2 तरह की होती है, एक पेरिफेरल जो कम दिनों के लिए दी जाती है, ठीक है, अगर कम दिन का किसी का है केस, और अगर ज्यादा दिन है, 14 दिन से ज्यादा किसी की बीमारी को लग जाएंगे, तो फिर हम टोटल पेरेंटेरल टीपीएन, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देंगे, ठीक है। अब कब हमने नहीं देना पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये जो है, अगर तो जीआई ट्रैक्ट पेशेंट का काम कर रहा है, फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको पेरेंटेरल दो, फिर आप उसको ट्यूब फिटिंग वगैरह दे दो। और बहुत ज्यादा अगर बीमार है, ठीक है, टर्मिनली इल, बिल्कुल, फिर आप पेरेंटेरल दे दोगे, ठीक है। और यहाँ अगर बहुत कम अरसे के लिए, 14 दिन से काम के लिए चाहिए, तो फिर भी हम टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं देते, ठीक है। उसमें पीपीएन के चांसेस है, हम उसे दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना, अगर 14 डेज से कम चाहिए, तो फिर कोशिश पहली तो यही होती है कि हम उसको दें एंटेरल। लेकिन अगर एंटेरल भी नहीं ले सकता, उसका जीआई ट्रैक भी काम नहीं कर रहा, तो फिर पीपीएन दे देंगे, पेरिफेरल पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। कैलकुलेटिंग द न्यूट्रिएंट नीड्स, के कैसे कैलकुलेट करना है कि पेशेंट को कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो जाहिर है उसके वजन के लिहाज से होगा। तो हमने जो है ना इसमें एक्सेस कैलोरीज को अवॉइड करना है, ठीक है, यानी कि अगर 1 किलो किसी का वजन है तो 40 किलो से ज्यादा कैलोरी नहीं यूज कर सकता, ठीक है। 50 किलो वजन है तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैक्सिमम कैलोरीज उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। हम जाहिर है ऐसे थोड़ी सी 5-10% कम ही पेशेंट को देंगे। इसके अलावा अगर अडल्ट या ओबीज है ना, तो बॉडी वेट के हिसाब से हम उसकी कैलोरीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो बीएमआई के लिहाज से देख लेंगे कि पेशेंट का वजन कितना है, उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, उसके लिहाज से हम पेशेंट को कैलोरीज जो है ना वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कैलोरीज कैन ओनली बी सजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द बॉडी वेट। ये जो BW लिखा हुआ ना, दैट इज बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, जितना उसका वजन है उसके हिसाब से हम पेशेंट को है ना वो कैलोरीज देंगे। इसके बाद है जी कि जाहिर है मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा फॉर्मूला, कि एडजस्टेड बॉडी वेट, ठीक है, एक तो हमने बीएमआई पढ़ा है ना, ये है एडजस्टेड बॉडी वेट, ठीक है, जो एक्चुअल वेट माइनस ये जो IBW है जी, ये क्या है, IBW देखते हैं जी, एडजस्टेड बॉडी वेट, और
आइडियल बॉडी वेट, ठीक है जी। तो एडजस्टेड बॉडी वेट उसका जो 20% का हम ऐसे निकालेंगे, जो उसका एक्चुअल वेट है और माइनस जो उसका आइडियल वेट होना चाहिए, ठीक है, आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.32 से, तो ये फीमेल में हमारा निकल आएगा जी आइडियल बॉडी वेट। और मेल्स के लिए हम बॉडी वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल वेट माइनस द आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 0.38 प्लस IBW। तो दिस इज द फॉर्मूला। एक तो हमने फॉर्मूलाज BMI BMR के किए थे ना, तो ये फॉर्मूला है कि पेशेंट का जो है ना एडजस्टेड बॉडी वेट हमने कैसे निकालना है, ठीक है। तो एक एक्चुअल वेट है जो उसका है इस टाइम, और एक वो है जो आइडियली होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारा जो वज़न है वो हमारा आइडियल वज़न हो। अब मेरा जो वेट है ज़रा थोड़ा ज़्यादा है, तो ये तो आइडियल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने जो आइडियल है मेरी हाइट के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, हमने वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, कि इतना वेट जो है ना वो होना चाहिए। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द एडजस्टेड बॉडी वेट फॉर द ओबीस पर्सन्स। पैरेंटरल कंपोनेंट्स, कौन कौन सी फॉर्मूला में चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें वो खा सकता है पेशेंट, ठीक है ना। मतलब खाने को अब खाने की फॉर्म में तो नहीं होंगी, होंगी तो वो फार्मूला फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि कोई मिल्क की फॉर्म में, कोई सोल्यूशन की फॉर्म में। तो उसमें अब कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, प्लीज़ इनकी कंसंट्रेशन याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फैट्स की इमल्शंस हो सकती हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं आपके फार्मूलाज में, क्या क्या चीज़ें हैं। तो फार्मूला में चीज़ें वही हैं जो आपके खाने में होती हैं, ठीक है। कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं उसमें आ जाएगी फार्मूला में, कोई हम ऐसी चीज़ नहीं पेशेंट को डाल देंगे जो तुम लोग नहीं खाते हो खाने में। कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स, यही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट का फॉर्मूला बना रही हैं। और एंटेरल में भी तकरीबन यही चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कार्ब्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो दोनों पेरेंटरल और एंटेरल दोनों में जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो वही हैं जो आपके खाने के कंपोनेंट्स हैं। अब जी प्रोटीन्स कितनी देनी है हमने पेशेंट को, ठीक है। तो 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। 1.2 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, जितना उसका बॉडी वेट है उसके लिहाज से, ठीक है। तो अगर 1 किलो वजन है तो 1.2 ग्राम प्रोटीन, अगर 10 किलो वजन है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 50 किलोग्राम वेट है तो उसके लिहाज से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो तुम लोग जो है ना वो कर ही लेते हो अक्सर। अच्छा जी, अगर किसी को स्वेयर बर्न्स हैं या स्वेयर ट्रॉमा है तो फिर उन केसेस में क्या होगा कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी, फिर हम उस पेशेंट को प्रोटीन ज़्यादा देंगे, ठीक है। किसी को स्वेयर बर्न्स या ट्रॉमा है तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स मिनिमम जो है 1.2 से 1.5, और मैक्सिमम ज़्यादा जो है ना वो हम 2.5 तक पेशेंट को दे सकते हैं प्रोटीन्स। इसी तरह से जी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हम मैक्सिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है 0.36 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी गिवन, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़्यादा दें ग्लू कार्बोहाइड्रेट्स को तो उससे प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकते हैं। इंक्रीज्ड वेंटिलेशन हो सकती है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड RQ, ठीक है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, इंक्रीज लिपोजेनेसिस और लिवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो RQ जो है ना वो हमारा रेस्पिरेटरी कॉफिशेंट है मेरे ख्याल में, ठीक है। RQ रेस्पिरेटरी कॉफिशेंट होता है। तो इसमें जो है ना इंक्रीज जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम पेशेंट को नहीं दे सकते। ज़्यादा तो प्रोटीन्स और फैट्स भी हम लोग, क्योंकि ये पहले पेशेंट बेड पे हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स भी हम उतने ही देंगे जितने रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा हम इनको नहीं दे सकते, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी कॉफिशेंट, वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, दीज आर द सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गिविंग द एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से जी लिपिड्स की रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट को, तो 4 से 10% किलो कैलोरी गिवन एज द लिपिड मीट्स द EFA रिक्वायरमेंट्स, और 2% टू 4% किलो कैलोरीज गिवन एज द लिन ऑलिक एसिड, जो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है ना उसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है। तो हम वो हमने 2 से 4% हम लिपिड्स जो है पेशेंट को वो दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअल रेंज 25 to 35%, ठीक है। यूजुअली जो है 25 से
35% तक हम लिपिड्स जो है ना वो पेशेंट्स को जो है वो इजीली हम दे सकते हैं। ठीक है, हमने पेशेंट्स को मैं देख रही हूँ कि EFA रिक्वायरमेंट्स जो है ना जी पेशेंट की वो है जी क्या है ये EFA रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिपिड्स। और जी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, EFA का मतलब है एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स हमने उतने देने हैं कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है ना, जो 3 याद है नाम एसेंशियल फैटी एसिड्स के, 3 जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं यानी कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए इतना हमने लिपिड्स पेशेंट को देना है। ठीक है, कि ये रिक्वायरमेंट जो है ना पेशेंट की पूरी हो जाए, जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो उस लिहाज से हमने पेशेंट को 25 से 35% तक बस लिपिड्स उनकी डाइट में, जो भी फॉर्मूला डाइट है उसमें हम पेशेंट को देंगे। अब अदर रिक्वायरमेंट्स, फ्लूइड कितना देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने देने हैं, ठीक है, वाइटामिन कितने देने हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कितने देने हैं, सारी चीज़ें हमने कंसिडरेशंस करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है ये अप एंड डाउन हो गए तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस हो सकता है, तो इस वजह से जी फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, नहीं कर सकता, फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डायरिया वगैरह ना हो जाए, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन वगैरह ना हो जाए, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना इस न्यूट्रिशन में आ सकते हैं पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट में। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे खाने में हम लोग अगर ओवर ईटिंग वगैरह कर दें तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरह से ये जो फॉर्मूला डाइट्स हैं, ये जो थ्रू आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग या थ्रू पेरेंटरल सपोर्ट दे रहे हो, इसमें भी अगर जो अप एंड डाउन हो जाएगा तो ज़ाहिर है पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स सबको बड़ा जो है ना वो जज करके और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हमने पेशेंट को इंजेक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ द कैथेटर्स ड्यूरिंग द पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सोल्यूशन ये जो है जी ये हम स्किप करेंगे। ठीक है, पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सोल्यूशन दैट इज नॉट द पार्ट, ठीक है, वो ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो वी विल स्किप दिस फाइल कि हमने ये नहीं निकालनी। ठीक है, रजिस्टर कैसे करना है कैथेटर्स वगैरह, इस पहले बता दूं कि हर बंदा नहीं कर सकता, हर नर्स नहीं कर सकती, स्पेशलाइज डॉक्टर्स या स्पेशलाइज नर्सेज होती हैं जो कि इसको कैथेटर्स को पेशेंट की बॉडी में जो है लिम्स के थ्रू जो है ना वो इंसर्ट कर सके। ठीक है, ड्रिप वगैरह तो तुम लोग लगा सकते हो, लेकिन कैथेटर्स जो हैं उस पर साइट जो है एक्सेस ऑफ साइट की लोकेशन जो है, फिर सही साइट में गया कि नहीं गया कैथेटर। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमें साथ में कैमरा या रेडियोग्राफिक आपका लगा होता है साथ में, जिससे पता चल रहा होता है कि सही साइट है, प्लेसमेंट सही है नहीं है, तो दैट इज़ आई थिंक अ डिफ़िकल्ट थिंग। हर कोई इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, घर पे इस तरह से नहीं हो सकता कि दे दें हम। तो सबसे सेफ तो हमारा जो है ना वो ओरल डाइट ही है, विच इज़ मोर सेफ, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम है। अब जी कैसे एडमिनिस्टर करना है, स्लोली हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, कि सबसे पहले दिन जो है वो 1 लीटर अगर फार्मूला है तो अगले दिन फिर 2 लीटर हम उसको कंसल्टेशन को बढ़ाते जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम उसको बगैर चेक किए, बगैर जज किए कि वो टॉलरेट कर रहा है नहीं कर रहा, हम पेशेंट को दे देंगे। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, कम से हमने स्टार्ट करना है और इसी तरह से स्लोली हमने इसको जो है ना वो ख़त्म भी करना है। ठीक है, रिड्यूस रेट बाय हाफ एवरी 1 to 2 आवर्स और स्विच टू डेक्सट्रोज 4। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि हम दे सकते हैं पेशेंट को, अगर फार्मूला ख़त्म करना है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म करेंगे और बिल्कुल ऐसे नहीं कर देंगे हम उसकी जगह पे ग्लूकोज वगैरह देना शुरू कर देंगे पेशेंट को। ठीक है, और अगर साइक्लिक फार्मूला है यानी कि खुद ही चलता रहे, कंटिन्यूस चलता रहे, साइक्लिक हम देते हैं ज़्यादा तक ड्रिप से। ठीक है, और ज़्यादा तक नाइट वगैरह को कि पेशेंट पास कोई अगर बंदा नहीं है तो ये 12 to 18 आवर्स पर डे मैंने बताया ना मैक्सिमम जो है ना ये चलता रहता है। ठीक है, ड्रिप की फॉर्म में होती है और थोड़ा थोड़ा करके कंसल्टेशन पेशेंट को मिलती रहती है। तो इस तरह से हमने स्टार्ट है पेशेंट को फार्मूला के बहुत स्लो से, बिल्कुल शुरू में हम जो है ना वो ज़्यादा नहीं दे सकते पेशेंट को।
अब जी इसकी मॉनिटरिंग और कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से चीज़ें हैं जी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है, कैथेटर केयर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैथेटर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी हम फॉरेन ऑब्जेक्ट जब बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो जाहिर है कि बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन के चांसेस, बैक्टीरिया अंदर जाने के बॉडी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और आखिरी एक चीज़ लिखी हुई है रीफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है व्हाट इज़ रीफीडिंग सिंड्रोम। तो ये जो क्वेश्चन है ना, रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, उसका आंसर ये है जी, फीडिंग सिंड्रोम बाय द 4 कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, 4 चीजें इसमें होती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है, कैथेटर केयर देखना पड़ता है, और रीफीडिंग सिंड्रोम होने के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब क्या है जी? रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब है हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी कि फॉस्फेट के लेवल कम हो जाते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर बढ़ जाती है, फ्लूइड रिटेंशन यानी कि बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ओडीमा वगैरह, और कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, देज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, 4 जो चीज़ें हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम। और ये मैंने बताया है कि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय रीफीडिंग सिंड्रोम, या रीफीडिंग सिंड्रोम के फीचर्स क्या हैं जी, वो लिख दें। तो ये हमने जी लाजमी करना है। ठीक है क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं अब हम। मॉनिटरिंग देखो, चाहे एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की हो चाहे पेरेंटेरल की हो, मॉनिटरिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जब तक मॉनिटरिंग नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मॉनिटरिंग वही है जैसे एंटेरल की मॉनिटरिंग है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह हम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं, ग्लूकोज को चेक करते हैं, इसी तरह से ये जो है वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन लेवल्स को, यूरिया को आप चेक कर रहे हो। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस को चेक कर रहे हो, प्लाज्मा ट्रांसमाइनेसिस को चेक कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से जो है ना जी, हमने पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की भी मॉनिटरिंग करनी है। तो ब्लड टेस्ट, अमोनिया टेस्ट, मैग्नीशियम, प्लाज्मा ट्रांसमाइनेसिस, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिंक, कॉपर, फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स, दीज ऑल आर द ब्लड टेस्ट व्हिच हैव बीन रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेशेंट। कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि सारे ये टेस्ट करवाए। ठीक है, ये टेस्ट करवाएगा तो पता चलेगा कि कंडीशन उसकी किस साइड पे जा रही है। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सारे टेस्ट ज़ाहिर है हमारे ठीक होने चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब है कि सूट नहीं कर रही पेरेंटल सपोर्ट पेशेंट को। इसके अलावा जी यूरिन का टेस्ट, यूरिन में ग्लूकोज, ठीक है, यूरिन में कीटोन्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी या ऑस्मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन जो सोल्यूट्स की है वो कितनी है बॉडी में, यूरिया, नाइट्रोजन, वॉल्यूम इन्फ्यूजेट, ओरल इनटेक, यूरिनरी आउटपुट कितना है। ठीक है, कितना वॉल्यूम उसको हम दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, और यूरिन आउटपुट कितना उसका आ रहा है डेली, कितना यूरिन वो कर रहा है, फिर टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, WBC काउंट, ब्लड कल्चर, सेल कल्चर, ये सारे मतलब कि दी ज़्यादा टेस्ट जो कि ज़ाहिर है जो डिपेंड अपॉन के डॉक्टर्स लिख के देगा और हम लोग पेशेंट के करवाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि किस डिजीज़ का वो पेशेंट है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने इसको एनालाइज करना है कि क्या क्या जो टेस्ट हैं वो हम पेशेंट के करेंगे। नॉर्मली ये इनमें से इसी तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले उसका वेट, फिर ग्लूकोज, उसकी शुगर वगैरह आप चेक करोगे। ठीक है, फिर जो है टेम्परेचर, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा, ये कॉमन कॉमन से टेस्ट हैं। फिर उसके RBCs, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे। इसी तरह से अब जी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, देखो पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट का फ़ायदा है कि जब नहीं भी GI टैट काम कर रहा तब हम दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर वो चीज़ इसका फ़ायदा है उसका कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है, कुछ के साथ प्रॉब्लम भी एडहेयर कर सकती है, जुड़ी हो सकती है।
तो जो पेरेंटरल पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, इसमें साइट इरिटेशन हो सकती है। जाहिर है जब आप किसी भी नीडल को ही अगर देखो थोड़ी सी लग जाए तो साइट इरिटेशन हो सकती है। तो इसमें तो आपने अंदर जो है रोज थोड़ी कैथेटर इंसर्ट करना है। कैथेटर के साथ जाहिर है बाहर कोई चीज होगी जिसे आप प्रोवाइड करते होगे। तो जब कैथेटर्स आप इंसर्ट करते हो फॉर द जैसे कि आप ड्रिप वगैरह जब लगाते हो, ठीक है, तो आप ग्रेनुला वगैरह उतारते नहीं हो कि रोज आपको पेन ना देनी पड़े पेशेंट को, ठीक है। तो इसी तरह से कैथेटर्स भी जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं हम, ठीक है जी। तो वो बड़ा केयरफुल सी सिचुएशन होती है, बहुत ख्याल से हमें वो इंसर्ट जो है ना वो करने पड़ते हैं। तो उससे साइट इरिटेशन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। कैथेटर सेप्सिस होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि सही उसकी लोकेशन है वहां पे कैथेटर नहीं गया, प्लेसमेंट प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर पेशेंट को हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द पैरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और ये हमने लाजमी करने हैं, ठीक है। एंटेरल के भी नुकसान क्या है, फायदा क्या है, पैरेंटरल का भी फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं जी, ये हमने लाजमी 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 करने हैं। इसके बाद है जी एनर्जी। पीड्स को कितनी देंगे एनर्जी, बच्चों को कितनी देंगे एनर्जी। मेरा ख्याल है कि वी विल स्किप दिस फाइल, दिस स्लाइड, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, कि कितनी एनर्जी हम इनको दे रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है जी डॉक्यूमेंट, वो हमने स्लाइड्स जो है ना जो मैंने स्किप की है ना वो हम नहीं करेंगे। मैंने बताया ना कि मैं तुम लोगों को इस चैप्टर को जो है ना वो दोबारा, इसमें से जो 2 4 5 6 स्लाइड्स हमने नहीं करनी ना, वो मैं स्किप करके ही तुम लोगों को दोबारा ये सेंड करूंगी उसमें ग्रुप में, जो बायोकेमिस्ट्री फॉर लाइफ का हमने बनाया हुआ है ग्रुप, ठीक है। तो वही तुम लोग करोगे, क्योंकि वो जो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना, ये एनर्जी वगैरह, दैट इज़ नॉट, मतलब कि कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी तुम लोग जो है ना तुम लोग को याद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम जो है ना इसको मेरा ख्याल है कि नहीं करेंगे, ठीक है। कि कितनी आपको चाइल्ड की जैसे 1 to 8 years, हाँ बिल्कुल, ये कैलोरी फिर तुम लोगों को वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा इसमें से जो चीज़ें हैं वो डिफरेंस आ जाता है कि इंटेरल और पेरेंटेरल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इंटेरल के एडवांटेजेस क्या हैं, पेरेंटेरल के एडवांटेजेस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, फिर कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं जब हम देते हैं फार्मूला, फिर फार्मूलाज कौन कौन से हैं, फिर फार्मूला का देने का तरीका, मेथड, वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दिस। और मैं एक नई जो है दोबारा तुम लोगों को फाइल दोबारा सेंड करूंगी जिसमें जो जो हमें स्लाइड्स नहीं करनी वो स्किप करके दूंगी, ठीक है, ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। तो जी अब हम इसके बाद लास्ट ही एक स्लाइड है, डॉक्यूमेंट इन चार्ट टाइप ऑफ द फीडिंग फार्मूला एंड ट्यूब। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीडिंग फार्मूला क्या दे रहे हैं हम पेशेंट को, ठीक है। देखो बाहर के मुल्कों में तो ये है ना कि जो भी रीनल डिजीज का पेशेंट है, जिगर के पेशेंट है, तो उसको सेपरेट अलहदा हम स्पेशलाइज उसके लिए फार्मूला होता है वो देते हैं, ठीक है। शुगर का मरीज है तो ज़ाहिर है शुगर फ्री होगा, ठीक है। लैक्टोज फ्री फार्मूलाज होते हैं ताकि पेट वगैरह ना ख़राब हो जाए पेशेंट का। लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली जो है ना, मैंने तुम लोगों को बताया एक ही तरह का जो हॉस्पिटल में आता है वही सारे पेशेंट्स को, जो आईसीयू के पेशेंट्स आए हैं जिनको पेरेंटरल या एंटेरल सपोर्ट चाहिए, उनको वो दिए जाते हैं। बट द थिंग इज के इट शुड बी स्पेसिफिक एंड सेपरेट फॉर द सेपरेट पीपल, ठीक है। हर बंदे के लिए मेरा ख्याल है कि सेपरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट कि उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो हमने टाइप देखनी है, फीडिंग फार्मूला की टाइप क्या है, और ट्यूब हमने देखना है कि ट्यूब में ये जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है कि फार्मूला इतना गाढ़ा होना चाहिए, ये इस ट्यूब में से पास हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें जाम तो नहीं जाएगा, पास तो नहीं जाएगा, या इतना पतला तो नहीं है कि पेशेंट के हलक से हलक को लगे और बिल्कुल इस तरह से जो है ना, या मतलब कि जो आप बिल्कुल पानी की तरह हो, ठीक है। वो उसकी कंसिस्टेंसी हमने खुद जो है ना वो एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ट्यूब,
ठीक है, फॉर्मूला की, कि वो इतना होना चाहिए, उसकी ग्रेविटी और विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए कि इजीली पास हो जाए जो भी है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फिटिंग से थ्रू, और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ट्यूब में ना हो, ताकि कंटिन्यूली जो है ना वो अपनी डाइट पेशेंट रिसीव करता रहे। अब इसमें स्लाइड्स प्लेन सेंड करें, प्लेन का क्या मतलब है जी? अच्छा जी, इसके अलावा जो है मेथड, बोलस, ड्रिप, पंप, कौन सा मेथड है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी के लिए। जो हमने डिलीवरी के मेथड्स पढ़े थे ना, इंटरमिटेंट, साइक्लिक, बोलस, ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स बेसिकली। इसके अलावा जो है जी रेट एंड वाटर फ्लश, ठीक है, जो फ्लश हम 3 दफा दिन में, मैंने बताया कि नर्स की ड्यूटी है कि उसने 3 दफा दिन में जो है ना वो पानी फ्लश करना है, ट्यूब को क्लीन करना है। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो जरा जरासीम उसमें आ जाएंगे, वो जरासीम पेशेंट के अंदर जाएंगे, जाहिर है। तो देखो, इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है इंटेरियल और पेरेंटेरियल का, कि बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चाहे ये स्टेलाइज ट्यूब्स हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वंस आप पेशेंट के साथ लगा देते हो, ठीक है, तो इसी वजह से ये है कि इसको बार बार उतारना हमने नहीं है, बार बार उतारेंगे तो और जरासीम जाने के चांसेस होंगे, प्लस पेशेंट के ज़ाहिर है साइट इंजरी भी हो सकती है, नाक पे उसके रैशेज, इंजरी, ठीक है, इरिटेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह कैथेटर भी हम रोज रोज इंसर्ट नहीं कर सकते। मम्मा को रोज आ रही, इनटेक एनर्जी एंड प्रोटीन, फिर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट इसको एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है, डिजीज ऑफ द पेशेंट इसको प्रोटीन कितनी चाहिए। मैंने जैसे बात की थी कि स्वेयर बर्न्स हैं, कुछ सर्जरी हुई हुई है, तो ज़ाहिर है कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट खास चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी इंटेक ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें खास प्रोटीन नहीं चाहिए, बल्कि प्रोटीन नुकसानदेह होगी, जैसे कि लिवर, उसके लिवर के भी हैं कुछ हद तक पेशेंट्स, एडवांस स्टेज वाले, और किडनी के पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हमने ये सारी चीज़ें रखनी है माइंड में। फिर टॉलरेंस, कॉम्प्लिकेशंस एंड करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, तो टॉलरेंस, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस फॉर्मूला की, और किस तरह से इसको हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि पेशेंट बेचारे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट एजुकेशन। देखो, अक्सर पेशेंट जो है वो बड़ा रिपेल करते हैं, बिल्कुल बड़ा जो है डिनाई करते हैं कि हमने ये गैस्ट्रो इंटायरेक्ट ट्यूब फीडिंग हमने नहीं लगानी। तो पेशेंट एजुकेशन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि ये आप तुम लोगों ने गाइड करना है कि ये आपके लिए बड़ा बेहतर है, ठीक है, ये तरीका जो है, चाहे आप कैथेटर्स की फॉर्म में दे रहे हो, चाहे पेरिफेरल लिम्स के थ्रू कैथेटर्स इंसर्ट कर रहे हो, चाहे ड्रिप के थ्रू दे रहे हो, चाहे ठीक है लॉन्ग कैथेटर्स दे रहे हो, तो पेशेंट को एजुकेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जी ये था जी हमारा चैप्टर इंटेरल और पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट का, जो कि हो चुका है जी अब फिनिश। और मैं तुम सबसे सबसे ये कहूँगी कि ये जो छुट्टियां हैं इसमें लाजमी इस चैप्टर को करना है तुम लोगों ने, बिकॉज थोड़ा सा न्यूट्रिशन से हट के है, ठीक है, तुम लोगों के मेरे ख्याल में नर्सिंग वगैरह से तो ज़्यादा रिलेट कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन से थोड़ा सेपरेट है ये। जैसे हम पहले करते थे कि लिवर डिजीज में क्या डाइट चाहिए, किडनी में क्या चाहिए, तो शायद वो थोड़े ईजी होते थे। इसमें तुम लोगों को टू द पॉइंट याद रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशन इंटेरल की है, ये पेरेंटेरल की है, मतलब कि हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम उसको मिक्स कर दें, ठीक है। तो इसी तरह से जी आपके जो फार्मूलाज हैं उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना वो याद रखनी है। अच्छा, वो जो मिली और स्मॉलर वगैरह लिखा होगा ना फार्मूला कैटेगरीज में आए, वो चाहे तुम लोग जो है ना वो ना करो, जो मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर शुरू वाली स्लाइड जो थी जिसमें हमने फार्मूलाज वगैरह जो है ना जी वो फार्मूला कैटेगरीज, यानी कि वो जिसमें वो था जनरल पर्पस, सेमी एलिमेंटल, डिजीज स्पेसिफिक, मॉडुलर, ठीक है, ये जो है ना ये वाली जो स्लाइड थी इसमें आपने फार्मूलाज के बारे में जितना इजी हो सके एक दो लाइन जो लिखी हुई है वो कर लो। और जो इसमें लिखा हुआ है ना कि इसमें मिली ऑस्मोलैरिटी इतना, लैक्टोज है इतना, ये वो चाहे स्किप कर देना, मैं उसी स्लाइड की तरफ आ रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग जो है ना वो जी याद रहे कि इसमें हमने कौन सी स्लाइड की मैं बात कर रही हूँ। सो वी आर कमिंग टूवर्ड्स स्लाइड
बहुत शुरू की वो स्लाइड थी। जी तो क्लास मुबारक। आ रहे हम उसी की तरफ। जी, ये जो स्लाइड हमारी फॉर्मूलाज वाली है, इसकी मैं बात कर रही हूँ कि इसमें जो है ना वो 300 से 500 मिली ऑस्मोलैरिटी पर किलोग्राम, 1 to 2 किलो कैलोरी पर ml लैक्टोज फ्री, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये याद कर लो तो अच्छा है, लेकिन अगर ठीक है नहीं भी होती तो इतना पता होना चाहिए पेशेंट के लिए हम फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ चलो 30 से 40% प्रोटीन यूज करनी है, एक्सपेंसिव है, ये चीजें याद रख लो। ये जो मिली ऑस्मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए और इतना लैक्टोज होना चाहिए, ठीक है। ये चाहे अगर एक दो चीजें स्किप भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वैसे ही हर फॉर्मूला के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आई विल एडवाइस कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एवरी फॉर्मूला के लिए थोड़ा ही दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ उन्होंने, बट फिर भी जो अगर बीच में ये जो याद रखने वाली चीजें, नंबर्स वगैरह, सब में वैसे नहीं भी दिया हुआ ये कि कितने ऑस्मोलैरिटीज की होनी चाहिए, कुछ में दिया हुआ है। तो अगर कर सकते होगे तो कर लेना, नहीं कर सकते होगे तो चाहे जो है ना स्किप कर देना, बट फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए कि जनरल पर्पस किस मकसद के लिए है, हाइड्रोलाइज किस मकसद के लिए है, सेमी एलिमेंटल, रिहाइड्रेशन, मॉड्यूलर, ठीक है। तो ये हम सबको जो है ना जी, इससे हम अवेयर होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए है जी। तो जी विद दिस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कोई क्वेश्चंस हैं तो देयर वेलकम। इसके बाद हम लोग की जो है इंशाल्लाह क्लासेस होनी है, वो आई थिंक के उसका भी स्केड्यूल टाइम टेबल वगैरह आ जाएगा। अभी तो ईद की छुट्टियां होंगी मेरे ख्याल में, नेक्स्ट वीक जो है ना, आज ही तुम लोगों की आज तक की क्लासेस थी ना, तो मेरी तरफ से तो एडवांस ईद मुबारक सबको, ठीक है, कि ईद अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। और स्टे एट होम से, स्टे सेफ, बाहर ना निकलो, घर पे ही इस दफा ईद जो है वो सेलिब्रेट करो, बहुत ज्यादा रिलेटिव्स को मत इनवाइट करो, मत जाओ। ऑन गोइंग जो पैंडेमिक है उससे भी जाहिर है आपने सेफ रहना है। ईद मुबारक जी, तो जी आप जो है ना वो घर पे ही इस दफा जो है ना वो ईद शीद सेलिब्रेट करें, शॉपिंग वॉपिंग ऑनलाइन करें, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो इनटू मार्केट्स, बिकॉज आई हैव सीन किसी पर्पस के लिए निकलना पड़ा था, तो आई जस्ट सॉ के दे markets are so much crowdy and especially the females, ladies, बच्चे साथ लाई हुई हैं, माएँ, और शॉप्स इस तरह भरी पड़ी हैं, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रही। तो दैट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप इस तरह से कैसे बच्चों के, डेफिनेटली जो इंक्रीज होगी फिर कोरोना के पेशेंट्स में वो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इस तरह से। तो मतलब कि मैं तो अपनी उस पे कार पे ही जा रही थी, तो आई हैव सीन कि इतना रश था इधर बाहर, जो शालीमार हॉस्पिटल के बाहर सामने शॉप्स हैं, शालीमार लिंक रोड पे आगे जो बाजार एक आता है भगवानपुरा, सो मच ओवर क्राउडेड, मतलब कि वहां से गाड़ी का गुजरना इतना टफ हो रहा था कि इतने लोग थे कि, और बच्चों को भी माएँ साथ लाई हुई हैं। तो प्लीज ये गलतियां अगर तुम लोग के करीबी कोई कर रहा है तो प्लीज जो है ना जी हमने उनको भी रोकना है, because once it has been spread it would be very very difficult to stop it, especially in the country like Pakistan। यहाँ पे स्प्रेड हो गया तो वी डोंट हैव एनफ हॉस्पिटल्स, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना ट्रीटमेंट है, ना डॉक्टर्स इतने हैं, तो यहाँ पे तो काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। तो बाहर के मुल्क वाले तो फिर कोई सहूलतें दे देते हैं अपने मरीजों को, यहाँ पे तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यही मेरी एडवाइस है कि स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। छुट्टियों में ईद भी मनाओ और थोड़ा अपना लेक्चर्स वगैरह भी देखो, ठीक है, तैयारी भी करो साथ में। और जैसे ही टाइम टेबल आएगा ईद के बाद का इंशाल्लाह, या इसी को फॉलो कर, जब तक छुट्टियां हैं उसके बाद से फिर इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स भी फिनिश हो गया है और ये इंटेरल पेरेंटरल भी फिनिश हो गया है। तो जी न्यूट्रिशन में तो हमारे काफी कम जो है ना वो चैप्टर्स रह गए हुए हैं, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं रह गए हुए। तो हो सकता है कि हम दोनों दिन फिर अगर जब हमारी क्लासेस अब रिज्यूम हो तो हम बुध और जुमेरात हो सकता है कि दोनों दिन हम बायो कैम्प को ही रख लिया करें, ठीक है, बिकॉज अभी न्यूट्रिशन में कम चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल में 1-2 चैप्टर्स हैं विच हैव बीन लेफ्ट। तो बायो कैम्प में थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म का चैप्टर है जो कि रह गया हुआ है।
तो जी आज तुम लोग को 10-15 मिनट पहले हम फ्री करेंगे, अभी तो टाइम पे से है. सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, एनीथिंग एल्स, ताकि हम जो है ना फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह. वो नहीं बनाना आपने. मच ठीक है अम्मा. वो पूरी बात. So if you have any questions, you can ask anything else. क्योंकि अगले लेक्चर में भी तुम लोगों के टाइम है. पूरी बात. क्या है? जी ये स्लाइड्स मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है. हार्मोन्स के तुम लोगों को मिल गए थे, एक दो और पेजेस थे जिसकी पिक्चर्स खींच के या स्कैन करके वो भी मैं शेयर कर दूंगी तुम लोगों को ग्रुप में. तो आई होप कि तुम लोग जो ना स्टडी करोगे इंशाल्लाह, जो है इसमें इन वेकेशन को यूटिलाइज करोगे. वैसे तो आजकल भी वेकेशंस ही हैं, ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि फिर आई एम साइनिंग आउट. अल्लाह हाफिज, ठीक है. तुम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग को स्टार्ट क्योंकि हो जाएगा 11 बजे, तो जी उसकी तैयारी शारी करो फिर, ठीक है जी. खुदा हाफिज.